Hello dear students of 12th standard. Once again Assalamu alaikum, Jule to all of you. So once again I'm here with a poem, with a very interesting poem. The title of the poem is Punishment in Kindergarten, and this poem is written by one of the famous Indo-Anglian poets, namely Kamala Das. So you might have some information about this famous poetess of our country. So dear students, as I told you earlier that before understanding any poem, we need to have a good deal of information about the life of the poet. So that's why first of all I would like to give you a brief introduction of the poet, and after that I'll also discuss the theme of the poem. Then we'll move ahead, so in a systematic manner. So first the poem, as I told you, the title of the poem is Punishment in Kindergarten. The poetess is Kamala Das. Kamala Das was a famous poet of our country. She was born on 31st March 1934 in a place, in a village, namely Punnayur Kulam in Kerala. Actually, Kamala Das used to write in two languages, that is Malayalam and English. So while writing in Malayalam, she used to, write a pen name, and her pen name was Madhavi Kutti. Madhavi Kutti was her pen name while writing in Malayalam. But in English, she normally used her name Kamala Das. So Kamala Das was a very famous poet, and she was not only a poet, she was also a novelist, she was also a short story writer. And besides that, for her outstanding contribution in literature, she got so many awards, so many prestigious awards were being conferred on her for her outstanding contribution in literature. So some of the awards she won were Sahitya Academy Award. Besides that, she won Asian Poetry Prize, Kent Award, etc. So these were the prestigious awards which were received by Kamala Das. And her notable works were My Story, The Descendants. These were some of the notable works of Kamala Das. So dear students, the poem which we are going to discuss now, which we are going to understand now, is the title, as I told you earlier, Punishment in Kindergarten. Actually, this poem is a little autobiographical poem by the famous Indo-Anglian poet Kamala Das. So this is an autobiographical poem, a little autobiographical poem. So do you know what an autobiography is? An autobiography is when a poet writes about his or her own life. That is an autobiography. So actually through this poem, Kamala Das, she is sharing an experience of her childhood with us. Actually, an incident took place in her childhood, and that incident she didn't like. So that's why, she is sharing that incident of her life with us. Actually, through this poem, we can also understand the child's psychology. When we scold the child, when we rebuke the child, when we insult the child, how that scolding can have a deep impact on the mind of the child. This can be understood after understanding this poem, after reading this poem properly. So dear students, so as usual, as I told you earlier also in my previous lectures also, I told you that if you really want to understand a poem properly, then you must try to recite that particular poem twice, thrice, 4, 5 times. So if you recite that poem twice, thrice, 4, 5 times, then definitely you will have a general idea about that poem. So that is why recitation is very important to understand a poem properly. So dear students, I would like to recite this poem. So but before recitation, I would like to say that so many poetic devices are also used here, which I will discuss later. But first I would like to recite this poem. You just listen carefully and enjoy my recitation, and at the same time try to grab some idea of the poem through this recitation. So the poem goes like this. Today the world is a little more my own. Today the world is a little more my own.
No need to remember the pain a blue-frocked woman caused throwing. No need to remember the pain a blue-frocked woman caused throwing words at me like pots and pans. Words at me like pots and pans to drain that honey-colored day of peace. To drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. On the lawn, in clusters, sat my schoolmates sipping. On the lawn, in clusters, sat my schoolmates sipping sugarcane. They turn it and laughed. They turn it and laughed. Children are funny things. They laugh in mirth at others' tears. They laugh in mirth at others' tears. I buried my face in the sun-warmed hedge. I buried my face in the sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. And smelled the flowers and the pain. The words are muffled now. The laughing face is only a blur. The words are muffled now. The laughing face is only a blur. The years have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving. The years have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving sadly on. My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the steel white sun standing lonely in the sky. Watching the steel white sun standing lonely in the sky. So dear students, after my recitation, definitely you must have got some idea about the poem. Now I would like to explain the poem line by line in Urdu or Hindi. तो उर्दू और या हिंदी में मैं poem को explain करूँगा line by line कि इस poem में क्या कमला दास कहने की कोशिश कर रही है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. थ्रू दिस पोएम शी इज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस ऑफ हर चाइल्डहुड इंसिडेंट विथ अस एक्चुअली. तो वो हमारे साथ एक चाइल्डहुड इंसिडेंट वो शेयर कर रही है. और इसके अलावा इस पोएम के जरिए हमें चाइल्ड के साइकोलॉजी का भी थोड़ा बहुत पता चलता है. जब हम किसी बच्चे को स्कॉल्ड करते हैं, रिब्यूक करते हैं, इंसल्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, तब उसके दिमाग पे कितना उसका बुरा इम्पैक्ट हो सकता है. तो ये पॉइंट भी हमें इस पोएम के जरिए पता चलता है. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन नाउ द पोएम लाइन बाय लाइन. सी, टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन. हियर कमला दास सेज, वो कहती है टुडे द वर्ल्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन. आज जो दुनिया कुछ ज्यादा ही मेरी है. तो एक्चुअली इस लाइन से एक चीज हमें पता चलता है, शी रोट दिस पोएम आफ्टर शी बिकेम एन अडल्ट. एक अडल्ट होने के बाद, जब वो बालिग होने के बाद उसने ये पोएम लिखा, तो वो कहती है आज दुनिया ज्यादा ही मेरी है. तो इस लाइन का मतलब ये भी है, आज जो है दुनिया पे, अपने जिंदगी पे मेरा ही कंट्रोल है. सो आई माई सेल्फ इज द मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ. मेरे जिंदगी पर किसी और का कंट्रोल नहीं, जबकि मेरा ही कंट्रोल है. दुनिया मेरी है, जिंदगी मेरी ही है. नो नीड टू रिमेंबर द पेन. उस पेन को याद करने की जरूरत नहीं है. उस दर्द को याद करने की जरूरत नहीं है. अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन कॉस्ट. जो दर्द मुझे दिया था एक औरत ने, जिसने एक ब्लू फ्रॉक पहना था. एक्चुअली एक ब्लू फ्रॉक पहना था जिस औरत ने, उसने मुझे बहुत ही एक पेन दिया था जब मैं छोटी थी. लेकिन अब मैं बालिग हो चुका हूं, अब मैं बड़ी हूं, अब मुझे उस पेन को याद करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है. थ्रोइंग वर्ड्स एट मी. उस औरत ने मुझ पे लफ्जों की बारिश किया था, मुझ पे अल्फाज फेंके थे. लाइक पॉट्स एंड पैन्स. कैसे अल्फाज फेंके? पॉट्स और पैन्स की तरह.
जैसे मुझ पे बर्तन फेंक रहे हो, जैसे मुझ पे पॉट्स फेंक रहे हो, पैन्स फेंक रहे हो। यानी कि शी स्कॉल्डेड मी इंटेंसली, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से मुझे डांटा था, बड़े ही बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए उस औरत ने जिसने ब्लू फ्रॉक पहना था उसने मुझे डांटा था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन मिला था। अब मुझे उस पेन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ आई हैव कम ऑफ एज, अब मैं बड़ी हो चुकी हूं, अब मैं बालिग हो चुकी हूं। टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड डे ऑफ पीस, उस औरत के डांट की वजह से मेरा वो खूबसूरत दिन जो है वो खराब हो गया था। टू ड्रेन, ड्रेन का मतलब रिमूव करना, खत्म करके लेना, यानी कि मेरे जो हनी कलर्ड डे ऑफ पीस को रिमूव किया था। हनी कलर्ड डे ऑफ पीस का मतलब बहुत ही खूबसूरत दिन। हनी एज यू ऑल नो, बहुत, जिसे उर्दू में हम शहद कहते हैं, बहुत मीठा होता है। तो यहाँ पे उस खूबसूरत दिन से तशबीह दिया है हनी के साथ, उस खूबसूरत दिन को तशबीह दी है हनी के साथ, क्योंकि हनी बहुत ही मीठा होता है। तो वो दिन भी बहुत ही खूबसूरत था, हनी की तरह खूबसूरत था, तो शहद की तरह वो दिन खूबसूरत था। उस खूबसूरत दिन के खूबसूरती को उस औरत ने ड्रेन किया, खत्म किया, उस औरत की डांट की वजह से। तो यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन है, दिस ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन इज एक्चुअली हियर द पोएटेस इज रेफरिंग टू हर टीचर। वो अपने टीचर की तरफ इशारा कर रही है, जिस टीचर ने उसको डांटा था, बहुत ही इंटेंसली डांटा था, बहुत शायद बुरे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए डांटा था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बुरा लगा था। सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, व्हाट अ पिक्यूलियर चाइल्ड यू आर। उसके टीचर ने उसे इस तरह से कुछ डांटा है, व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, तुम दूसरों के साथ ज्वाइन क्यों नहीं होती हो, तुम दूसरों के साथ शामिल क्यों नहीं होती हो। व्हाट अ पिक्यूलियर चाइल्ड यू आर, तुम कितने अजीब बच्चे हो। पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, पिक्यूलियर मीन्स बड़ा ही अजीब। यानी कि कमला दास कहती है, जिस दिन जो बहुत ही हनी कलर्ड डे था, बहुत खूबसूरत दिन था, उस दिन मुझे उस ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन ने, जिस औरत ने ब्लू कलर का एक फ्रॉक पहना था, जो मेरा टीचर था, उसने मुझे डांटा था इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम दूसरे बच्चों के साथ ज्वाइन क्यों नहीं होती हो, तुम कितने पिक्यूलियर बच्चे हो, कितने अजीब बच्चे हो तुम। ऑन द लॉन इन क्लस्टर्स, लॉन में, लॉन का मतलब सहन, जहां पे थोड़ा सा जगह हो, सो दैट्स अ लॉन। तो उस लॉन में, सहन में, पार्क में, इन क्लस्टर्स, ग्रुप में, क्लस्टर मीन्स ग्रुप, ग्रुप में सैट माई स्कूल मेट्स, मेरे स्कूल के साथी बैठे हुए थे। स्कूल मेट मीन्स स्कूल के साथी। सैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट, सिट का मतलब बैठना, सैट मीन्स बैठे हुए थे। तो ऑन द लॉन, उस सहन में, इन क्लस्टर्स, ग्रुप में, सैट माई स्कूल मेट्स, मेरे स्कूल के साथी बैठे हुए थे, सिपिंग, पी रहे थे, सिप का मतलब पीना, सिपिंग पी रहे थे, शुगर केन, क्या पी रहे थे, गन्ने का रस, वो गन्ने का रस पी रहे थे। तो जब यहां पे कमला दास कहती है, जब उनके टीचर ने उनको डांटा, उसके स्कूल के साथी भी सारे वही लॉन में बैठे हुए थे, ग्रुप में बैठे हुए थे, सभी लोग शुगर केन पी रहे थे, गन्ने का रस पी रहे थे। जब कमला दास के टीचर ने उनको डांटा, दे टर्न इट एंड लॉफ्ट, वो स्कूल के बच्चे भी मुड़े और उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। दे टर्न इट, वो मुड़े, एंड लॉफ्ट, और हंसे। चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, यहां पे पोइट कहती है, चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, बच्चे बहुत ही अजीब चीज होते हैं। फनी का मतलब बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब, बच्चे भी बड़े अजीब होते हैं। दे लॉफ, वो हंसते हैं। इन mirth, खुश होकर, mirth का मतलब हैप्पी, खुश, यानी कि वो लोग खुशी में हंसते हैं। एट अदर्स टीयर्स, जब दूसरे लोग रोते हैं। तो एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, यहां पे किंडरगार्टन की बात कर रहे हैं। किंडरगार्टन आपको पता है, जहां पे नर्सरी जो स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे जहां पे पढ़ते हैं, दैट स्कूल इज कॉल्ड ए किंडरगार्टन। तो यहां पे किंडरगार्टन के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, उन्हें समझ नहीं होता है, तो जब कोई रोता है तो सभी लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तो यहां पे भी कमला दास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। व्हेन शी वाज क्राइंग,
जब कमला दास रो रही थी बिकॉज ऑफ द स्कॉल्डिंग ऑफ द टीचर के डांट की वजह से जब कमला दास रो रही थी तो बाकी बच्चे जो है उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। तो यहाँ पे कमला दास कहते हैं बच्चे भी बड़े अजीब होते हैं, वो दूसरों के आंसुओं पर हंसते हैं। I buried my face in the sun-warmed hedge. मैंने अपने चेहरे को छुपाया। यानी कि सभी लोग जब कमला दास की तरफ देखकर हंसने लगे तो उसे शर्म आया, तो वो कहती है मैंने अपने चेहरे को बरी किया। वैसे बरी का लिटरल मीनिंग होता है दफनाना, यहाँ पे बरी का मतलब छुपाना। सो शी कमला दास हैज हिडन हर फेस, उसने अपने चेहरे को छुपाया। इन द सन वार्म्ड हेज, कहां पे छुपाया? उस हेज के पीछे जो सूरज के धूप की वजह से गर्म हुआ था। हेज का मतलब होता है वैसे जाड़े, प्लांट्स का एक दीवार सा बना होता है, जैसे आपने पार्क्स में देखा होगा प्लांट्स का एक दीवार सा बना होता है। दैट द वॉल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हेज, जाड़े। तो कमला दास कहती है जब बाकी मेरे स्कूल मेट्स मेरे तरफ देखकर हंसने लगे तो मुझे शर्म आया, मैंने अपने चेहरे को छुपाया। कहां पे छुपाया? उस सन वार्म्ड हेज के पीछे छुपाया, उस जाड़े के पीछे छुपाया जो सूरज के धूप की वजह से गर्म हुआ था। एंड स्मेल्ट, और मुझे बू आया। स्मेल्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्मेल। स्मेल का मतलब बू आना, कुछ सूंघना। और मुझे बू आया द फ्लावर्स एंड द पेन। वहां पे मुझे दो किस्म के बू आ रहे थे। एक तो मुझे फ्लावर्स की बू आ रही थी, वहां फूलों के, उस पार्क में फूल थे, उस हैच के ऊपर फूल लगे हुए थे, मुझे उन फूलों की भी बू आ रही थी। एंड द पेन, और अपने दर्द की भी बू आ रही थी। मेरे टीचर के डांट की वजह से मेरे दिल में एक दर्द सा जगा हुआ था, उस दर्द की भी बू आ रही थी और फ्लावर्स की भी बू आ रहे थे। वहां पे दो किस्म के बू मुझे वहां पे आ रहे थे। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, अब वो लफ्ज मेरे दिमाग से आहिस्ता आहिस्ता मफल हो गया। मफल का मतलब मिट गया। देखो एक्चुअली शी रोट दिस पोएम आफ्टर शी हैज कम ऑफ एज, आफ्टर शी हैज बिकम एन एडल्ट। यानी कि कमला दास ने ये पोएम लिखा है उसके बालिग होने के बाद। अब वो कहती है एक्चुअली ये तो मेरी चाइल्डहुड का एक इंसिडेंट था, मेरे बचपन का एक इंसिडेंट था, लेकिन अब वो जो अल्फाज मेरे लिए कहा था मेरे टीचर ने डांटते हुए, अब वो मफल हो गया, अब वो मेरे मेमोरी बॉक्स से मिटने लगा, खत्म होने लगा। द लॉफिंग फेस इज ओनली अ ब्लर, और जो चेहरे मुझ पे हंसे थे वो चेहरे भी मुझे ब्लर सा याद है। ब्लर मीन्स धुंधला सा याद है, मुझे क्लियरली याद नहीं है कि कौन से चेहरे मुझ पे हंसे थे, यानी कि हल्का सा मुझे याद है वो चेहरे जो मेरे ऊपर हंसे थे। द ईयर्स हैव स्पेट अलोंग, साल इतने तेजी से गुजर गए। स्पेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीड। स्पीड एज यू ऑल नो, तेजी से। तो साल जो है, वक्त जो है बहुत तेजी से गुजर गए। स्टॉपिंग ब्रीफली, मुख्तसर वक्त के लिए रुकते हुए। ब्रीफली का मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, स्टॉप का मतलब रुकना, शॉर्ट टाइम के लिए रुकते हुए। एट बिलाउड हॉल्स, कहां पे रुके? बहुत ही प्यारे पड़ावों पे। बिलाउड का मतलब प्यारा, खूबसूरत। हॉल्ट का मतलब पड़ाव। पड़ाव का मतलब जहां पे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे सफर करते करते कहीं पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हॉल्ट। तो यहां पे कमला दास कहती है वक्त भी तेजी से गुजर गए, सिर्फ खूबसूरत पड़ावों पर रुकते हुए, प्यारे पड़ावों पर, हॉल्स पे रुकते हुए। एंड मूविंग सैडली ऑन, और फिर वक्त जो है आगे बढ़ता रहा। यानी कि वक्त जो है उदास तरीके से, मायूस तरीके से आगे बढ़ता रहा। माई माइंड हैज फाउंड, अब मेरे दिमाग ने पाया। फाउंड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड। मेरे दिमाग ने पाया एन एडल्ट पीस, क्या पाया? बालिग होने का एक सुकून पाया। पीस का मतलब अमन, सुकून, शांति। अब एडल्ट का मतलब बालिग। अब मैं बालिग हो गया हूं, इसलिए मेरे माइंड ने एडल्ट होने का, बालिग होने का एक सुकून पाया, एक शांति पाया। क्योंकि उसने पहले फर्स्ट लाइन में कहा था नाउ आई हैव बिकम द मिस्ट्रेस ऑफ माई ओन वर्ल्ड, अब मैं अपने जिंदगी का खुद में मालिक बन गई हूं, अब मेरे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई मुझे डांट नहीं सकता है। तो इसलिए कमला दास कहती है अब बालिग होने का मुझे एक सुकून मिला।
नो नीड टू रिमेंबर, याद करने की जरूरत नहीं है, दैट पिकनिक डे, उस पिकनिक के दिन को, उस पिकनिक, यानी कि यहां से और एक चीज हमें पता चलता है डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन टीचर ने उसे डांटा था उस दिन एक पिकनिक डे था, पिकनिक पे बच्चों को लिया था, किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स को पिकनिक पे लिया था। तो शायद इससे हमें और एक चीज भी कमला दास के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। शायद वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो तन्हाई को पसंद करती थी, शायद वो अकेली कहीं बैठी हुई थी, तो जिस पर उसके टीचर ने उसको डांटा, जिस पर उसके टीचर ने उसे कहा भाई तुम बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठते हो, तुम अकेले क्यों बैठते हो, तुम कितने पिक्यूलियर बच्चे हो, अजीब तुम किस्म के चाइल्ड हो। तो देखो ये एक पिकनिक डे का वो एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर रही है। सो शी सेज नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे, उस पिकनिक के दिन को याद करने की मुझे जरूरत नहीं है, व्हेन आई ले हिडन, जब मैंने अपने आप को छुपाया था। हिडन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हाइट, HIDE, हाइट का मतलब छुपना, छुपाना। सेकेंड फॉर्म इज हिट, HID, थर्ड फॉर्म इज हिडन। तो कहती है कमला दास, जब मैंने अपने आप को छुपाया था बाय ए हैच, कहां पे छुपाया था, एक जाड़े के पीछे। हैच मीन्स प्लांट्स का एक दीवार, प्लांट्स के दीवार के पीछे मैंने शर्म के मारे अपने आप को छुपाया था। अब उस दिन को मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त मैं छुपा था, वॉचिंग द स्टील वाइट सन, किसकी तरफ देखते हुए छुपा था, उस सूरज की तरफ देखते हुए जो बहुत तेज चमक रहा था। स्टील वाइट सन मीन्स विच वॉज शाइनिंग क्वाइट वेरी फास्ट, शाइनिंग इंटेंसली, जो शिद्दत से जो सूरज चमक रहा था उस सूरज की तरफ मैं देख रही थी जब मैं छुपा था जाड़ी के पीछे, जाड़े के पीछे। स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, यानी कि उस वक्त मैं देख रही थी उस सन की तरफ, सूरज की तरफ जो आसमान में बिल्कुल तन्हा था, यानी कि वो अपना कंपैरिजन उस सूरज के साथ कर रही है जो आसमान में तन्हा था। वो कहती है सूरज आसमान में बिल्कुल तन्हा था और यहां पे मैं बिल्कुल तन्हा थी, यहां पे मैं बिल्कुल अकेली थी। तो मैंने सिर्फ उसी सूरज को देखा जो वहां पे तन्हा था और अपने आप को छुपाया था एक जाड़े के पीछे, एक वॉल ऑफ प्लांट्स के पीछे, एक हैच के पीछे। लेकिन अब उस दिन को मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब बड़ी हो गई हूं, अब बालिग हो गई हूं, अब अपनी जिंदगी पे मेरे खुद का कंट्रोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टफ्स ऑफ दिस पोइम। तो इस पोइम में जो भी चीजें हैं आपने समझ लिया होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस पोइम. So as I told you earlier, dear students, so once again I am going to repeat that to make a poem very meaningful and attractive, majority of the poets use poetic devices or figure of speech in their poetry. तो बहुत सारे पोइट्स जो है फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने पोइम्स में, अपने पोइम को बहुत ही मीनिंगफुल बनाने के लिए. सो इसमें भी एक दो फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलता है, कमला दास ने यूज किया है इस पोइम में. एक तो इसमें कमला दास ने यूज किया है पर्सोनिफिकेशन का. इन दिस पोइम शी यूज्ड पर्सोनिफिकेशन. तो पर्सोनिफिकेशन कहते हैं जब हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह हम ट्रीट करते हैं. एक नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह जब हम ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. जैसे एक नॉन लिविंग थिंग से हम बात करते हैं जैसे वो कोई इंसान हो, एक ह्यूमन बीइंग की तरह हम ट्रीट करें, दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. तो इस पोइम में एक पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है कमला दास ने. वो इस स्टैंजा में आप देखिए, मैं पढ़ता हूं वो लाइंस जहां पे कमला दास ने, पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है. दैट इज द years have sped along. देखो यहां पे years have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving sadly on. तो इन लाइंस में कमला दास ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है. यहां पे years को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है. वैसे year इज एक्चुअली दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग, हम तो इसको एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया है. यहां पे कमला दास ने कहा है जो साल हैं वो तेजी से गुजर गए, रुकते हुए पड़ावों पर. वैसे पड़ावों पर कौन रुकते हैं, इंसान ही रुक सकते हैं. तो यहां पे years को एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. तो और एक इंपॉर्टेंट यहां पे पोएटिक डिवाइस का कमला दास ने इस्तेमाल किया है, दैट इज वर्ड इमेज.
वर्ड इमेज का इस पोइम में कमला दास ने इस्तेमाल किया है. दैट इज, डू यू नो व्हाट इज अ वर्ड इमेज? ओह नो प्रॉब्लम, आई वुड लेट यू नो. मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड इमेज होता क्या है. When the poet creates images by hyphenating between words. जब एक पोएट जो है इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में एक तस्वीर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्ड्स को हाइफन के जरिए जोड़कर, कुछ वर्ड्स को, जैसे ग्रामर में एक हाइफन होता है, छोटा सा एक डैश, तो उसके जरिए दो वर्ड्स को जोड़कर वो एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है पोएट हमारे दिमाग में. दैट डिवाइस इज कॉल्ड वर्ड इमेज. तो इसमें कुछ वर्ड इमेज का भी कमला दास ने इस्तेमाल किया है. जैसे एक जगह है अ ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन. देखिए ब्लू फ्रॉक के बीच में एक हाइफन लगाया है, ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन. तो ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन कहते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है एक औरत का जिसने एक नीले रंग का फ्रॉक पहना है. तो इसको हम कहेंगे एक वर्ड इमेज. और एक एग्जाम्पल यहां पे है वर्ड इमेज का, हनी कलर्ड डे. यानी कि हनी और कलर्ड के बीच में एक हाइफन लगाया और एक इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश की है. हनी कलर्ड डे कहते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है एक बहुत ही खूबसूरत दिन का, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव दिन का हमारे दिमाग में एक इमेज बनता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड इमेज. तो इन दो पोएटिक डिवाइसेस का कमला दास ने इस पोएम में इस्तेमाल किया है, डियर स्टूडेंट्स. सो होप you might have understood all the things in this poem. So thank you very much for being with me. Some time.